Good morning, students. Now, today we are going to see the lecture number 13. In this lecture, we will see some limitations of the ER model. We will see the conceptual design using the ER model. We will see that how we are going to convert the ER model into the relational model, and what are the things through which it is completely going to be defined. That is, we are going to discuss the concept of aggregation versus ternary relationship versus how better the conceptual design can be made by using the same ER model. So we will see the entity versus attribute, entity versus relationship, and the simple representation about these things. So this is the lecture in which we are going to see these concepts one by one. Now, if we see about the first thing, that is the limitation of the ER model. Right from the beginning, if you have seen that we were discussing the concept of ER model, we have seen that ER model is complete, it is large, it is representing each and everything, but still it is having certain limitations. What are the limitations? The first point says that no relationship may be defined between an entity type and a relationship type. That means the first drawback of the ER model says that it is having no relationship which is defined between entity and the relationship type. Similarly, the second limitation says that no relationship may be defined between an entity type and a collection of entity types from which any one type may participate. That means the second drawback that is being present inside in the ER model is that it is not able to clearly specify the relationship between different types of entities and the collection of entities from which one may participate. For example, if I say that entity type is policyholder, so the policyholder may be an individual, multiple individual, and if we say about the second entity, that is policy, the policy is for one organization or for many organizations. So entity types, these two entity types are not able to define that whether policy is being obtained from policyholder or policyholder is being obtained from policy. So this is the second drawback. Similarly, it is having the other type of limitation, that is no constraint like exclusion or coexistence among relationship type is clearly being defined. What it is defining, we have seen the two types of constraint, that is the total cardinality constraint and the participation constraint. लेकिन इसके अलावा भी कुछ constraint होते हैं जैसे कि exclusion और coexistence, ये उस ER डायग्राम के अंदर डिफाइन नहीं हुए थे. ये कॉन्स्टेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमारे पास NIAM मॉडल होता है तब, और उसमें UML क्लास डायग्राम को हम अलाउ करते हैं, जबकि ER डायग्राम में हमने इस तरीके का कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं देखा था. तो ये हमारे पास कुछ ER डायग्राम मॉडल की लिमिटेशन थी. अब हम अगर कंसेप्चुअल डिज़ाइन की बात करें तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन ER मॉडल को यूज़ करके कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए, अगर हमें कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाना है ER मॉडल का, तो हम ER मॉडल को ट्रिकी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग द फॉलोइंग डिज़ाइन चॉइसेस. What are the design choices? The first choice is either we take only entity or we take the attribute, or either we take the entity or we take only the relationship, or we take the relationship of either binary type or ternary type, or we aggregate, that is we take the combination of both the binary and ternary. If we make these choices inside in the design, then we can say that ER model can be more tricky, it can be more simple, and ER model is able to explain everything. So we can say that ER model is having certain goals. What are the goals? That ER model is having the goals and limitation. The goal says that it is having lot of semantics and it needs lot to be captured. तो ER डायग्राम के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है और बहुत सारा कंटेंट हमें और भी कैप्चर करना होता है. तो ये हमारा मेन गोल होता है ER मॉडल का. अब लिमिटेशन देखें तो ये कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट उसके अंदर कैप्चर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमें उनको कैप्चर करने के लिए कुछ लॉजिकल रिलेशनल डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़ते हैं. तो ER मॉडल का गोल और लिमिटेशन हमारे पास क्लियर है और हम उसको सिंपल भी बना सकते हैं अगर ये डिज़ाइन की चॉइसेस हम उसके अंदर करते हैं.
अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में स्पेसिफाई। तो अगर हमारे पास कन्वर्ट करना है ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में, तो सबसे पहली बात जो स्ट्रक्चर बनेगा ER मॉडल के बेस पे रिलेशनल मॉडल में, वो भी एनालॉगस होगा, सेम होगा और बहुत कुछ मिलता जुलता होगा। मिलता जुलता कैसे? जैसे यह डायग्राम बहुत लार्ज था, बहुत हैवी था, वैसे ही इट विल रिप्रेजेंट द फेयरली एनालॉगस स्ट्रक्चर. So this is the first point. What does the second point says when we are going to convert ER model to the relational model? That in many simple concepts in ER are subtle to specify the relationship. कहने की बात क्या है कि अगर मेरे पास, मान लीजिए अगर मेरे पास ER मॉडल में एक सिंपल सा कंसेप्ट था रिलेशनशिप टाइप का, और उसको जब मैं ER मॉडल को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करता हूँ तो बहुत सारे सिंपल कंसेप्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ेगी. तो कहने की बात क्या है, अब अगर मेरे पास सिंपल रिलेशनशिप है, ये एक सिंपल रिलेशनशिप का कंसेप्ट है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल रिलेशनशिप के कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है. इसमें क्या है, एक एंटिटी है और ये इसके एट्रीब्यूट है. अब मैंने इसमें एक एंटिटी और ले ली तो मेरे पास क्या हो गया, इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट हो गए. अब इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए. तो क्या बात हुई, उस रिलेशनशिप के लिए भी मुझे उसके अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ा. तो इस तरीके से मेरा सिंपल ER मॉडल रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट होता है. Clear? Next is aggregation. What is aggregation? When we say about aggregation, we are having certain types of example. If you see, first thing that we are having this as the relationship. If you see in this dotted line, then this is entity of project and the department relationship is sponsor. That means we are having this as the entity and this as the entity, and with the binary relationship it is completely being specified. That means we used when we have to model a relationship involving entity set and relationship set. So if we are going to use this binary relationship which is being shown by the dotted line, and we are having one more relationship that is related with the employee entity. If this employee entity is being joined by the monitor relationship with this sponsor relationship, that means it is also representing something. ये तो एक बाइनरी रिलेशनशिप था ही, इसमें एक रिलेशनशिप और जुड़ रहा है. अगर ये तीन रिलेशनशिप जुड़ गए तो पहली बात तो एक टर्नरी रिलेशनशिप हो गए, जिसमें इस डॉटेड लाइन का अंदर वाला रिलेशनशिप तो पूरा बाइनरी है. जब हमने इसमें एक बाहर वाला ये रिलेशनशिप जोड़ा तो ये टर्नरी रिलेशनशिप बन गया. टर्नरी रिलेशनशिप मतलब हमने इन तीनों रिलेशन की ग्रुपिंग कर दी. यहाँ तक तो ये बाइनरी है और यहाँ से ये टर्नरी है. तो एग्रीगेशन हमारा इस कंसेप्ट को डिफाइन करता है. पहली बात, एग्रीगेशन कब यूज होता है? एग्रीगेशन is used when we have to model a relationship which involves entity set and the relationship set. So you can see it is a combination of entities. If I see about is this relationship, whole relationship, so it is having three entities: project, department and the employees, and it is having the two relationship, that is monitor and the sponsor. So when we are going to combine it, group it, then we prefer to use the term aggregation. So aggregation allows us to treat relationship set as an entity set for the purpose of participation in other relationship. तो aggregation हमें क्या बताता है? aggregation हमें यही बताता है कि किस तरीके से relationship set को हम entity के लिए entity को use करते हैं relationship set में, जिससे कि और relationship भी specify हो सके. तो यहाँ पे और relationship क्या है? monitor वाला. इस relationship में दूसरा relationship जब हमने जोड़ दिया तो ये aggregation को define करता है. अब अगर हम एग्रीगेशन और टर्नरी रिलेशनशिप इस एग्जाम्पल में प्रॉपरली देखें तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक अलग रिलेशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ है. एक उसका एक एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट से मॉनिटर इस रिलेशनशिप में जुड़ रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट ई स्पॉन्सरशिप इज मॉनिटर्ड बाय एट मोस्ट वन एम्प्लॉय. सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नरी रिलेशनशिप. क्लियर? Now again, if we see the conceptual design using the ER model, so we are having the design choice that should we accept the model as an entity or as an attribute entity or a relationship, binary relation or ternary or aggregation. तो हमने अभी पहला कंसेप्ट क्या देखा? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का देखा है.
अब अगर हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं अपना एंटिटी या एट्रीब्यूट में से, तो हमें कंसेप्ट क्या कहता है, या तो हम सिर्फ एंटिटी के बेस पे बनाएं या फिर उसके अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट लें। अब अगर हम एंटिटी और एट्रीब्यूट में से कोई भी एक चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना ज़रूरी होगा कि वो एंटिटी की तरह बिहेव कर रही है या एट्रीब्यूट की तरह बिहेव कर रही है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन एड्रेस, so first of all what I need to specify about the address, whether address is relating the attribute of employees or entity of its own. That means the word address is an attribute of employee entity, that means it is behaving as an entity, attribute of an entity, या इट इज एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन, या फिर ये अपने आप में एक एंटिटी है या फिर ये एट्रीब्यूट है किसी एंटिटी एम्प्लॉय का। तो एड्रेस को ये स्पेसिफाई करना जरूरी होगा कि वो एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है या एट्रीब्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स सिमेंटिक्स एंड द यूज, हम इस एड्रेस को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट है। सिमेंटिक्स और यूज के बेसिस पर एड्रेस कंप्लीटली डिफाइन करेगा कि वो एट्रीब्यूट है या एंटिटी है। मान लीजिए अब मैंने सिमेंटिक्स पॉइंट को कहा सेवरल एड्रेसेस पर एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो एंटिटी है, मस्ट बी एन एंटिटी, या फिर एटॉमिक एट्रीब्यूट है, या फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। तो सिमेंटिक्स क्या कह रहा है, पहला पॉइंट सिमेंटिक्स का कहता है, कंटेंट का कहता है। कंटेंट के बेसिस पे अगर मैंने कहा तो मेरे पास एम्प्लॉय के पास बहुत सारे एड्रेसेस हैं, तो एम्प्लॉय इसका मतलब वो एड्रेस क्या हो गया, एक एंटिटी है या फिर अपने आप में एटॉमिक एट्रीब्यूट है। अब मैंने दूसरा पॉइंट कहा कि यूज के बेसिस पे केयर अबाउट द स्ट्रक्चर। केयर अबाउट स्ट्रक्चर मतलब अब मैं एड्रेस को किस लिए ले रहा हूँ, स्ट्रीट, सिटी और कई चीज़ों को बताने के लिए। तो एड्रेस किस लिए यूज़ किया जाता है, सिटी के बारे में, स्ट्रीट के बारे में और कई चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो इसका मतलब अब या तो फिर वो अगेन एंटिटी हो गया या फिर वो एट्रीब्यूट हुआ। तो उसका रोल क्या है, एंटिटी है या एट्रीब्यूट है, ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी और एट्रीब्यूट का ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास इसमें एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है, ये रिलेशनशिप है वर्क्स इन का। तो एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट 2। अब अगर हम इसमें वर्क्स इन 2 में एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट फॉर ग्रेटर पीरियड 1, अगर हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एक साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, तो हमारा ये केस सिंपल डिफाइन कर रहा है, जिसमें कि हमने वर्क्स ऑन के अंदर फ्रॉम और टू के 2 एट्रीब्यूट लगाए हैं, जिससे पता चलता है कि वो कब से कब तक काम कर रहा है। लेकिन अब अगर हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस हैं एम्प्लॉय के, तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। अब अगर हमें ड्यूरेशन पता करनी है कि वो एम्प्लॉय कितनी देर तक काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है, तो हमने क्या करा, एक ड्यूरेशन का एट्रीब्यूट, ड्यूरेशन एंटिटी ले ली और 2 एट्रीब्यूट फ्रॉम और टू ले लिए। तो कहने की बात क्या है, हमने रोल स्पेसिफाई किया कि कौन सा एम्प्लॉय जो है प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है, एंटिटी के केस में या एट्रीब्यूट के केस में। तो दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है जो कि हमने देखी है। अब अगर हम एंटिटी और रिलेशनशिप वाले कंसीडर करें कि या तो हम सिर्फ एंटिटी लेंगे या रिलेशनशिप लेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि एंटिटी और रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, सेपरेट डिस्क्रिशनरी बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब हम अगर एक केस देखते हैं, एक ईआर डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजेस 2 डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इज डिनोटेड बाय इट्स नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड लॉट नंबर, व्हाइल डिपार्टमेंट इज हैविंग देयर एट्रीब्यूट। अब मैनेजेस जो है रिलेशनशिप टाइप है वो क्या है, सिंस और बजट है। इसके 2 एट्रीब्यूट हैं। सेपरेट बजट के लिए हमने हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट बजट रखा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए व्हाट इफ मैनेजर्स डिपार्टमेंट बजट कवर्स ऑल मैनेज डिपार्टमेंट, ये जो हमने मैनेजर्स का डिपार्टमेंटल बजट रखा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये सारे डिपार्टमेंट का बजट है या हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट है, मतलब जॉइंट बजट है या ये सेपरेट बजट है। तो हमने क्या कहा, व्हाट इफ मैनेजर्स डिपार्टमेंट बजट कवर्स ऑल मैनेज डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब अगर ये जॉइंट बजट है, मान लीजिए ये जॉइंट बजट है तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए होगा, और ये सिर्फ एक बजट है तो एक डिपार्टमेंट के लिए
होगा, तो इसका रोल यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका मतलब कुड रिपीट वैल्यू, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास रिपीट वैल्यू आएगा, रिपीट वैल्यू हो जाएगी, और इसका मतलब रिडंडेंसी होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर जो है किस रोल में है, डिपार्टमेंट के बजट का रोल है, तो पूरे डिपार्टमेंट्स का है या सिंगल डिपार्टमेंट का, ये स्पेसिफाइड नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमें जब हम कोई एंटिटी लेंगे या रिलेशनशिप टाइप का रोल लेंगे तो हमारे पास स्पेसिफाइड होना चाहिए, तभी ये बेटर डिज़ाइन हमारे पास कहलाएगा। क्लियर? तो बेटर डिज़ाइन के लिए हमारे पास एंटिटी या रिलेशनशिप दोनों ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और हमें ये स्पेसिफाई प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब अगर हम इसी को और रिफाइन करके देखें तो हमारे पास क्या हो गया, इसी केस में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट था, हमने मैनेजर और मैनेज कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इन सब का प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन क्लियरली कर दिया। तो यहाँ पे क्या करा, रिलेशनशिप टाइप को प्रॉपरली डिजाइन कर रहा, तो ये हमारा एक बेटर डिजाइन है इसके रिगार्ड में। यहाँ तो सिर्फ एंटिटीज के केस थे, यहाँ पे रिलेशनशिप को हमने और प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। क्लियर? दिस इज द एंटिटी वर्सेस रिलेशनशिप। सो विद दिस the lecture finishes. We are going to discuss and see more concept in the next lecture. Okay, thank you.